ایک اور اہم خبر آپ کو بتاتے ہیں کہ باغبان پورہ میں عمارت کی تیسری منزل گرنے کا واقعہ ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق اسکول میں سمر کیمپ لگایا گیا تھا اور باغبان پورہ میں متاثرہ عمارت اسکول کی نکلی۔ عمارت سے بچوں کو نکالنے کا عمل اس وقت جاری ہے۔ یہ مناظر سماجی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لاہور باغبان پورہ کا علاقہ ہے جہاں پر عمارت کی تیسری منزل کی دیوار گرنے کا یہ واقعہ۔ عثمان علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائے گا، ابتدائی معلومات کے مطابق یہ اسکول کی عمارت نکلی ہے اور سمر کیمپ اس وقت جاری تھا۔ کتنے بچے اندر موجود تھے اور کتنے بچوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے وہاں سے؟ جی بالکل، عینی شاہدین کے مطابق یہ ایک النصر نامی اسکول تھا جہاں پر تعمیراتی کام جاری تھا اور اس کی تیسری منزل جو ہے وہ کنسٹرکٹ کی جا رہی تھی، جس کی تقریباً 2 سے 3 دیواریں جو ہیں وہ گری اور اس کی اینٹیں جب نیچے کو آئیں اور ملبہ نیچے کو آیا اس سے ایک بچہ جاں بحق ہونے کی اطلاعات ریسکیو کے مطابق دی جا رہی ہیں، جبکہ 4 جو زخمی ہیں ان کو ابتدائی طور پر طبی سروسز کے لیے سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ یہاں پر ریسکیو کی بڑی تعداد موجود ہے۔ وہ بچے جو کہ اندر تھے، عمارت کے اندر تھے، اب بھی بڑی تعداد میں بچے جو ہیں وہ بتایا جا رہے ہیں کہ عمارت کے اندر موجود ہیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے کم از کم 20 سے 25 بچوں کو جو ہے وہ اندر سے نکالا گیا ہے، ریسکیو کیا گیا ہے۔ یہاں پر ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ موجود ہیں، پولیس کا عملہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو سول ڈیفنس کے جو رضاکار ہیں وہ بھی موقع پر موجود ہیں اور بچوں کو اندر سے ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو اہل علاقہ ہیں وہ بھی موقع پر موجود ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت بھی ریسکیو کا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تمام تر جو ملبہ تھا چھت پر جو تعمیراتی کام جاری تھا اس کا ملبہ جو گلی میں گرا اس کی وجہ سے بھی ریسکیو کا آپریشن کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ ملبہ کافی زیادہ تھا۔ دیواریں اور اینٹیں جب گری اوپر سے تو اس نے گلی کو جو ہے وہ بلاک کر دیا، جبکہ جو اضافی طور پر پریشان والدین یہاں پر پہنچے ہیں اپنے بچوں کو باحفاظت لینے کے لیے، ان کی بھی آہو بکا ہم نے یہاں پر سنی اور وہ بھی خاصے پریشان تھے، کیونکہ ایک ایسا ہی سانحہ جو ہے وہ ٹیوشن سینٹر کا کانا میں پیش آیا۔ تو آج ایک دفعہ پھر سے یہ ابتدائی معلومات ابھی سمر کیمپ یہاں پر لگایا گیا تھا، اس اسکول کے حوالے سے بتائیے تھا، یہ کوئی نجی اسکول ہے اور سمر کیمپ جس کے حوالے سے اب اجازت نہیں ہے، سمر کیمپ اس کے باوجود یہاں پر چل رہا تھا اور ابھی 2 روز پہلے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ یہاں پر تعمیر ایک جانب جاری ہے اور ساتھ ساتھ بچوں کا سمر کیمپ بھی لگایا گیا ہے، یہ تو سنگین غفلت ہے یہاں پر۔ جی بالکل، یہ سنگین غفلت کا مرتکب پایا گیا ہے۔ النصر نامی اسکول ہے جو کہ باغبان پورہ وومن کالج کے بالکل ملحقہ آبادی میں موجود ہے اور یہ ایک گنجان آباد علاقہ ہے اور اس حوالے سے جو سمر کیمپ ہے وہ بھی لگانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو سمر کیمپس ہیں وہ یہاں پر لگے ہوئے تھے اور بچے جو ہیں وہ معمول کے مطابق آ کر اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو والدین ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی، جو بچے ہیں ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی تو ان کے مطابق بھی یہی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر سمر کیمپ کی کلاسز جو ہیں وہ چل رہی تھی اور اسی دوران یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ چھت کی دیواریں گری اور جو اندر اکیڈمی تھی یا اسکول تھا یہاں پر ایک دم بھگدڑ مچ گئی، جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ بھی ہم نے کافی یہاں پر ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بچے جو ہیں وہ دیکھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں 3-3 4-4 سال 5-5 سال کی بچیاں جن کو اندر سے ریسکیو کیا جا رہا تھا وہ رو رہی تھی، ان کے والدین جو ہیں وہ بھی خاصے پریشان تھے۔ بچے ڈرے سہمے ہیں، والدین تو پریشان ہیں، والدین کی پریشانی بنتی ہے۔ 2 روز پہلے انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ والدین عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ریسکیو اہلکار انہیں روک رہے ہیں۔ صورتحال کیا ہے یہ بتائیے گا وہاں پر؟ بالکل، یہاں پر اس وقت ایک بگدڑ کی صورتحال جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ عوام کا جمع غفیر یہاں پر موجود ہے، اہل علاقہ بھی موجود ہیں، ریسکیو ٹیمیں موجود ہیں، پولیس موجود ہے، بچوں کے والدین موجود ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کے والدین اپنے بچوں کو لے کر کتنے کنسرنز ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے جب انہوں نے عمارت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو ریسکیو کے عملے کی جانب سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ دکم پیل بھی یہاں پر ہمیں نظر آئی دیکھنے میں کہ جو والدین تھے وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ ریسکیو کے عملے کی جانب سے پولیس کی جانب سے ان کو روکا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں، تمام بچے جو بھی اندر ہیں، ریسکیو آپریشن چل رہا ہے، ان کو باحفاظت باہر نکال لیا جائے گا۔ لیکن ابھی یہاں پر اب بھی بچوں کو اسکول کے اندر سے نکالنے کا عمل جاری ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، نہ صرف چھوٹے بچے بلکہ بڑی کلاسز کے بچے جو ہیں ان کو بھی ہم نے یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ 7ویں جماعت کے، 8ویں اور 9ویں جماعت کے طلباء جو ہیں وہ بھی یہاں سے ہمیں نکلتے ہوئے نظر آئے۔ تو یقین یہاں پر یہ بتا سکتا ہوں کہ تقریباً کوئی 4 سال سے لے کر 16 سال 15 سال تک کے بچے جو ہیں وہ اس عمارت کے ایک بچہ، انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ ایک بچے کی جان گئی ہے، اس بچے کی عمر کیا تھی، کوئی شناخت ہو سکی؟ زخمی بچوں کی حالت کیا بتائی جا رہی ہے؟
जी बिल्कुल, एक बच्चा जो है वो मलबा उस पर गिरने की वजह से उसकी जान गई और उसका नाम जो यहाँ पर लोग हैं, अहले इलाके हैं, वो शायद अबू बकर बता रहे हैं और इब्तदाई तौर पर उसको भी यहाँ से निकालकर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके साथ साथ जो 4 शदीद जख्मी बच्चे थे उनको भी निकालकर जो है वो सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि जो मैंने देखा है यहाँ पर अब जो बच्चे निकाले जा रहे हैं वो उनकी हालत खतरे से बाहर है, मामूली चोटें हैं, बच्चे डरे हुए हैं, बच्चे सहमे हुए हैं, लेकिन उनकी हालत जो है वो ठीक है। अभी मजीद रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है, जिसके बाद ये चीज वाज़ेह होगी कि अंदर कितने बच्चे मौजूद थे, कितने बच्चे जख्मी हुए, कितने बच्चों की जान को नुकसान पहुंचा और कितने बच्चे जो ऐसे हैं जो कि तशवीशनाक हालत में हैं। अभी भी रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो यहाँ पर मुतहरिक दिखाई दे रही हैं, ना सिर्फ निचली मंजिल बल्कि इसके अलावा जो स्कूल की 2 स्टोरीज और हैं वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, मलबे को भी हटाया जा रहा है और इस समय जो बच्चे हैं उनको भी अंदर से रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है। वालिदैन यहाँ पर हमें खासे जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। उस्मान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जहांगीर ने भी हमें जान किया। जहांगीर, अभी वहां पर क्या सूरत हाल है, कितने बच्चे, ये तो अब स्कूल की इमारत निकली जहां पर समर कैंप लगाया गया था, एक और गैर कानूनी समर कैंप यहां पर निकला है जिस पर अब हुकूमत ने इस वक्त पाबंदी भी लगा दी है और समर कैंप उसके बावजूद जारी था। कितने बच्चे अंदर मौजूद थे और कुछ इतलात आई कि जख्मी बच्चों की हालत क्या बताई जा रही है? सबसे पहले तो जो बच्चा जहांबाग हुआ उसकी शनाख्त के बारे में अभी तस्दीक हो गई है कि उस बच्चे की उम्र 8 साल है और उसका नाम अब्दुल्ला है, उसके वालिद का नाम अमजद भट्ट है। इसी इलाके का रिहायशी है बच्चा है। बच्चे की डेड बॉडी जो है वो जरूरी कार्रवाई के बाद इसके वुस्ता के हवाले कर दी जाएगी और रेस्क्यू का ये कहना है कि रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। इसमें तयन ये किया जाएगा कि मजीद इस मलबे तले कोई शख्स कोई बच्चा मौजूद तो नहीं है और उसमें जो अफराद जख्मी हुए हैं उनको सर्विसेज हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। जख्मी होने वाले अफराद की शनाख्त जो है वो भी कर ली गई है। रेस्क्यू का ये कहना है कि जो 4 अफराद जख्मी हो उसमें 35 साल का नदीम, 38 साल का एक शख्स शकील, 25 साल का फयाज और 42 साल का वसीम शामिल है, जिनको के सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब तकमील के बिल्कुल करीब है, लेकिन अब चूंकि एक वाकया पहले सामना हो चुका है जिसमें 14 बच्चे जाबाज हुए हैं, तो इस नौयत के तमाम वाकयात जो हैं अब तो सेंसिटाइज किया गया है। ये वाकया भी इसको भी सीरियसली लिया जा रहा है और जब तक इस बात की तसल्ली नहीं कर ली जाती कि मलबे तले कोई और शख्स या कोई बच्चा मौजूद नहीं, उस वक्त तक रेस्क्यू टीम यहाँ पर डिप्लॉय रहेंगी। और रेस्क्यू काम का ये कहना है कि तमाम मलबा हटाकर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद जो इस बात की तहकीकात। जहांगीर, ये बागवानपुरा का इलाका खासा गुंजान आबाद इलाका है ये भी, और यहाँ पर एक गली के अंदर ये कोई निजी स्कूल या एकेडमी है जहाँ पर समर कैंप चलाया जा रहा था। इसके हवाले से बताइए कि बागवानपुरा में किस जगह पर है ये और यहाँ से जो जख्मी बच्चे हैं उन्हें किस अस्पताल मुंतकिल किया गया? रेस्क्यू की कितनी टीमें इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं? आज रेस्क्यू की 7 गाड़ियों के साथ 25 रेस्क्यू एहलकार और ऑफिसर्स जो हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। 12:12 के ऊपर जो है ये कॉल बागवानपुरा के इलाके से रेस्क्यू को मौसूल हुई थी और रेस्क्यू का स्टेशन जो है वो जीटी रोड पर बागवानपुरा के बिल्कुल करीब वाक़ है, जहाँ से पहली रेस्क्यू एम्बुलेंस ने यहाँ पर रिस्पॉन्स किया था। रेस्क्यू का ये कहना है कि इलाका चूँकि गुंजान आबाद है और इसमें बहुत सी कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत पुरानी है, यानी बिफोर पार्टीशन की कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मौजूद है। खुशहाल इमारतें भी हैं, घर भी हैं और ये जो कंस्ट्रक्शन की जा रही थी, एक स्कूल है जिसने ये बिल्डिंग खरीदी थी और उसके बाद स्कूल को एक्सटेंड करने के लिए इसकी 3री मंजिल पर लेंटर ऊपर उठाकर कंस्ट्रक्शन का काम जारी था और इसी तामीराती काम के दौरान जो है इसकी छत गिरी है और छत गिरने से 5 अफराद इब्तदाई तौर पर ये इतला थी कि मलबे तले दबे हैं, जिनमें से 4 को तो जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन एक 8 साल का बच्चा अब्दुल्ला जो है वो मलबे तले दबकर जाबाज हुआ है। मजीद जो इसकी तहकीकात हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन के मुकम्मल होने के बाद की जाएंगी कि इसकी वजूहात क्या थी। सही, जहांगीर हमारे साथ ही मौजूद है, मालूमात हासिल करते हैं। उस्मान, आपकी जानिब एक मरतबा फिर से बढ़ते हैं। ये जो बागवानपुरा के इलाके में समर कैंप लगाया गया था, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को जो हमें देख रहे हैं एक मरतबा फिर से बताएगा, ये सरकारी या निजी जो है ये इदारा था जहाँ पर समर कैंप इस वक्त जारी था, और ये भी बताएगा कि तमाम बच्चों को यहाँ से बाहिफाजत निकाल लिया गया है?
जी बिल्कुल, जो रेस्क्यू का अमला है उसके मुताबिक बच्चों को निकालने का अमल अब भी जारी है और तकरीबन रेस्क्यू ऑपरेशन जो बच्चों को निकालने के हवाले से है वो तकमील के करीब है। जबकि यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि ये जो निजी स्कूल था, अल नसर के नाम से ये स्कूल था, जो कि बागबानपुरा वुमेन्स कॉलेज के करीब ही मुल्का जो आबादी थी वहां पर मौजूद था। ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर गलियों की अगर बात कीजिए तो इंतहाई तंग गलियां हैं, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है उसमें भी यकीनी तौर पर रश की वजह से जो लोगों का जमे गफीर लगा हुआ है, जो वालिदैन इकट्ठे हुए हैं, उसकी वजह से मुश्किलात हैं। अगर स्कूल की इमारत की आपको तफसीलात बताऊं तो तकरीबन ये 7 से 8 मरले की एक इमारत थी, जो तकरीबन 5 से 6 फुट वाली गली के अंदर वाक़ई थी। 5 से 6 फुट गली की सिर्फ चौड़ाई थी, जिसके जो कि एक तंग गली है, और उसी गली के अंदर ये तमाम तर टीमें जो हैं वो मौजूद हैं। वालिदैन भी उसी गली में मौजूद हैं, रेस्क्यू की टीमें, पुलिस का अमला तमाम उसी गली में मौजूद है। और तकरीबन कोई 8 से 10 फुट का छोटा दरवाजा है जिसके अंदर से बच्चों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। वालिदैन खासे परेशान है। 3 मंजिला ये इमारत थी, जिसकी तीसरी मंजिल अभी तामीर की जा रही थी, जो कि अभी गिरी। और SOPs के मुताबिक तो जो जेरे तामीर इमारतें होती हैं वहां पर किसी किस्म की भी इस तरह की एक्टिविटी जो है वो इलीगल करार दी गई है। जबकि आज फिर यही सवाल सामने आता है कि एक जो निजी घर है वहां पर किस तरीके से ये स्कूल जो है इसको ऑपरेट किया गया, ये भी तफसीलात सामने बाद में आएंगी कि आया ये स्कूल जो है रजिस्टर्ड था या गैर रजिस्टर्ड था। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है और बच्चे अब भी इस इमारत के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें वक्तन फवक्तन जैसे जैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं बहुत ज्यादा। उस्मान साथी मौजूद है। दानियाल, आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप बताइएगा, आपके पास क्या मालूमात हैं, कितने बच्चे जख्मी हैं और कितने अफराद जख्मी हैं, उन्हें किस अस्पताल में मुंतकिल किया गया, वहां पर क्या सूरत हाल है? देखो मैं, जख्मियों की तादाद 5 हो गई है। इस वक्त 4 जख्मियों को सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक जो तमाम जख्मी हैं ये एडल्ट हैं और बड़ी उम्र के हैं जो कि जख्मी हुए हैं। और साथ ही साथ जो शालामार अस्पताल जो कि बागबानपुरा के करीब ही एक निजी अस्पताल है, वहाँ पर एक 7 साला बच्चे को भी मुंतकिल किया गया है, जिसको मुख्तलिफ नौइयत के जख्म आए थे और इस वक्त अस्पताल में उसका इलाज जारी है। साथ ही साथ सर्विसेज अस्पताल में एक बच्चे को रिसीव किया गया था जो कि रिसीव्ड डेड था। जो बच्चा इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुआ है। तो एक इस टाइम जो अस्पताल की इंतजामिया है उनके मुताबिक एक जाँ बहक बच्चा है इस वाक़े के अंदर, और साथ ही साथ 5 जो जख्मी हैं उनको इस टाइम अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। ऑर्थोपेडिक और जो न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर्स हैं उनको तलब कर लिया गया है, क्योंकि जो फ्रैक्चर्स हैं इनको जनरल साथी मौजूद रहेगा, आपसे मजीद मालूमात भी हासिल करेंगे। उस्मान, जय वक़ुआ पर आप मौजूद हैं, वहां पर क्या मनाजिर आपने देखे हैं, क्या सूरत हाल है, तफसीलन हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। तीसरी मंजिल पर तामीराती काम जारी था। इस वक्त मैं बागबानपुरा के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर वुमेन्स कॉलेज के करीब वाक़े अल नसर स्कूल की जो इमारत है इसकी दीवार गिरने से जो बच्चा है एक वो भी जाँ बहक हो गया, जबकि 4 जख्मी हुए जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब भी